if sec theta plus tan theta is equal to p, then show that the first question we have to prove sec theta is equal to p square plus 1 upon 2p, and the second tan theta is equal to p square minus 1 upon 2p, and the third sin theta is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. Listen, in your examination it may happen that all the three questions will not come simultaneously. They ask only either first part or second part or third part. So here we are solving from the beginning. You can choose either first part या second part or third part. Let us see. बेटा जैसे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको या तो पहला दूसरा तीसरा प्रूव करना है, तो हम एक ऐसा मेथड को फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को हम एक साथ लगा सकते हैं. आइए देखते हैं. पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि sec theta is equal to है p square plus 1 upon 2p, and then tan theta is equal to p square minus 1 upon 2p, and then sin theta is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. Let us see how to prove. The first part we have to prove first part. Write the solution. Let us suppose that the question is only if sec theta plus tan theta is equal to p, then show that sec theta is equal to p square plus 1 upon 2p. Like this. It is given that sec theta plus tan theta is equal to p. Suppose this is given, so this is the first equation. Now we know that there is a relation between sec and tan, which is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. जैसा कि आपको पता है ना, there is identity formula for sec square theta minus tan square theta is equal to 1. तो since write the formula, अर्थात इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है तो आपको पहले आइडेंटिटी फार्मूला sec और tan लिखना है, which is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. This implies that actually it is the form of a square minus b square, so it may be written as sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta is equal to 1, because it is the form of a minus b into a plus b is equal to 1. This implies that as you know that sec theta plus tan theta is equal to p now, so you may write sec theta minus tan theta into p is equal to 1, या sec theta minus tan theta is equal to 1 by p. 1 by p. This is your second equation. Let us suppose this is your second equation. Now सुनो, this is the first equation, this is the second equation. Now on adding equation 1 and 2 we है, जब आप ऐड करते हो तो plus tan theta minus tan theta cancel out, it gives only sec theta plus sec theta, which gives 2 sec theta is equal to p plus 1 by p. After solving we have sec theta is equal to p square plus 1 upon 2p. Let us see. तो लिखो आप on adding equation 1 and 2. On adding equation first and second. So on adding equation first and second, sec theta plus tan theta plus sec theta minus tan theta is equal to p plus 1 by p. Here we see that tan theta minus tan theta both are cancelled, so it gives only 2 sec theta is equal to, after p plus 1 by p na, it gives p square plus 1 upon p. So sec theta is equal to p square plus 1 upon 2p. Actually 2 के ट्रांसफर करोगे ना इसके डिनोमिनेटर में, it gives 2p. ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया. Now the second part we have to prove that if sec theta plus tan theta is equal to p, then show that I think here is the tan theta na. It gives I think this is question. Then prove that tan theta is equal to होगा p square minus 1 upon 2p. Then what we will do? एक्चुअली में इस बोर्ड के एग्जाम में बेटा एग्जाम में ना या तो सेक थीटा के लिए पूछेगा तो tan थीटा पूछेगा, कभी भी एक साथ मोर देन वन क्वेश्चन नहीं आता है. इसको हम पार्ट वाइज क्वेश्चन बना कर रहे हैं. हमारे सेकंड क्वेश्चन है, तो कहां से स्टार्ट करोगे? सेम प्रोसेस है. पहले लिखो, राइट डाउन गिवन दैट sec theta plus tan theta is equal to p. It is your given part. Second, now we know that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. This implies that this is the identity formula, sec theta minus tan theta in one bracket into sec theta plus tan theta is equal to 1. This implies that as you know that sec theta plus tan theta is equal to p now, so it gives sec theta minus tan theta into p is equal to 1. यहाँ से होगा sec theta minus tan theta is equal to 1 by p. बेटा देखो ये तो सेकंड इक्वेशन की तरह दिखता है, यहाँ तो तुमने निकाल लिए थे. अब इसके बाद क्या करना है? एक्चुअली में हमको ना tan की वैल्यू चाहिए. अगर आप ऐड करते हो तो tan एलिमिनेट हो जाता है.
अगर आपको tan की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, ताकि आप sec को एलिमिनेट करो, tan को बचा लो, tan ऐड हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ऊपर की 2 लाइन हमें अरेंज कर देना। आप cos बटन यूज करके आप लिख सकते हो। तो लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, अर्थात व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये था आपका sec थीटा प्लस tan थीटा, इक्वेशन सेकंड था sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, ये होगा p माइनस 1/3। ध्यान दो, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p था एंड sec थीटा माइनस tan थीटा क्या था, 1/p था। दिस इंप्लाइज दैट, ओपन दिस ब्रैकेट, जब ओपन ब्रैकेट करोगे चलो दिखा देते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा ना p स्क्वायर माइनस 1/2p। थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई करना। अब देखो आप क्या देख रहे हो, sec से कैंसिल ना, सो इट गिव्स ओनली 2 tan थीटा इक्वल टू होगा p स्क्वायर माइनस 1 सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा बेटा, बस p आएगा, 2 तो जब यहाँ आएगा p, तो दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू होगा p स्क्वायर माइनस 1/2p, p स्क्वायर माइनस 1/2p, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, अर्थात ये प्रूफ हो गया ना। अब थर्ड इक्वेशन बेटा, थर्ड जो है ना, आप थर्ड के लिए क्या था, आई थिंक sin थीटा था या cos थीटा था, क्या प्रूफ करना था कि sin थीटा इक्वल टू लाना है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा कैसे करते हैं, यानी अब हम थर्ड के लगा रहे हैं, sin थीटा इक्वल टू लाना है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। बेटा देखो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको sec थीटा और tan थीटा निकालना होगा। जैसे आपने निकाला sec थीटा, एक बार ऐड करोगे तो आपका आएगा sec थीटा, और इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 करोगे, थर्ड सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां से tan थीटा आएगा। उसके बाद आप करना क्या कि sin थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, जरा सोचो। मतलब हम जान चुके हैं ना कि sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा होता है p स्क्वायर प्लस 1/2p, और tan थीटा बराबर होता है p स्क्वायर माइनस 1/2p। अभी भी प्रूफ किया ना, देखो यही लाया था ना, sec थीटा इक्वल टू था आपका, sec थीटा था इक्वल टू, उल्टा दी थी क्या, sec थीटा था p स्क्वायर प्लस 1/2p एंड tan थीटा था p स्क्वायर माइनस 1/2p। अब हमें sin थीटा निकालना है। देखो sin थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, आई थिंक देखो sin थीटा को हम ऐसे लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा इनटू cos थीटा, तो कुछ फायदा होगा बिल्कुल। sin बाई cos को हम लोग tan करते हैं, क्या करते हैं, tan थीटा, अब इनटू cos थीटा, और इस cos थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा अपॉन 1/cos थीटा, अर्थात क्योंकि cos ऊपर जाएगा ना 1/cos थीटा, यानी हो जाएगा tan थीटा sec थीटा, tan थीटा इनटू sec थीटा, सॉरी tan थीटा अपॉन sec थीटा, tan थीटा अपॉन sec थीटा। अभी डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, क्या कि sin थीटा जो होता है ना tan थीटा अपॉन sec थीटा होता है। इतना मतलब मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, आपको शॉर्टकट तरीका याद कर लेना, थोड़ा याद कर लोगे तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं sin थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब आपको ये थोड़ा सा लर्न करना होगा। देखो tan थीटा की वैल्यू मैंने निकाला है, क्या है p स्क्वायर माइनस 1/2p, दिस इज द tan थीटा, और sec थीटा क्या है देख लो p स्क्वायर प्लस 1/2p। अब क्या देख लो 2p कैंसिल ना, इट गिव्स ओनली p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, यही प्रूव करना था, ठीक है बेटा। इसे याद रखना कि tan थीटा अपॉन sec थीटा ही क्या है, sin थीटा के बराबर है। सो इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if sec theta plus tan theta is equal to p, then show that p square minus 1/p square plus 1 is equal to sin theta। बेटा इससे पहले जो है ना क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया उसका जो थर्ड पार्ट था बिल्कुल यही था। इसको हम इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मेथड। तो कैसे करते हैं, इट इज वेरी सिंपल। इट इज गिवन दैट ना p इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, तो जो प्रूफ करना है कि p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sin थीटा, दिस इज सेड टू बी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चलोगे जहां p की वैल्यू क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा, उसको यूज करोगे या रखोगे और उसको मैनिपुलेट करोगे, देखो आ जाएगा। इट इज वेरी इजी। देखो कैसे करते हैं, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, जहां p क्या है, p दिया है ना, यही दिया ना, sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर। इट इज वेरी इजी कैलकुलेशन।
अब क्या करोगे, न्यूमरेटर बेटा ध्यान दो, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर ना, तो इसको एक्सपेंड करो, क्या होगा बताओ। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और लास्ट में क्या होगा -1 होगा, होल डिवाइडेड बाई, इसको भी एक्सपेंड करिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और लास्ट में क्या होगा +1 होगा। अच्छा एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था सेक और टेन में, कि आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको थोड़ा याद करिए, जरूरत पढ़ने पे बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दो, और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे -1 है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ पे -1 है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इट बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1 इट बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये दोनों एलिमिनेट होकर के टेन स्क्वायर थीटा चेंज हो गया। अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहले से था, अब प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा है, डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा इक्वल टू का साइन है बेटा, ऐसे देखो ये +1 है और ये टेन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा पहले से था, प्लस टेन स्क्वायर थीटा +1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इट गिव्स सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। देखो बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, जनरली हमने यूज किया आइडेंटिटी फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, न्यूमरेटर के लिए यूज किया हमने कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू हमने रखा टेन स्क्वायर थीटा, एंड फॉर द डिनोमिनेटर वी विल यूज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा और इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है इस बार, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इट गिव्स 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस, और बचेगा 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा इनटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय, फिर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इट गिव्स 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब ध्यान दो आप न्यूमरेटर में कोई चेंजेस है कि नहीं, आई थिंक 2 टेन थीटा चेंज वो है कॉमन है, तो आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में 2 सेक थीटा कॉमन है, तो आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आई थिंक ये दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि दोनों सेम ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस सेक, बोथ आर सेम एंड मस्ट बी कैंसिल, और दो से दो कैंसिल, तो इट गिव्स ओनली टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, या लिख सकते हो टेन थीटा इनटू 1 बाई सेक को कॉस करते हो कॉस थीटा, और टेन को फर्दर क्या लिखो साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस बटन यूज करके आप लिख सकते हो बेटा एक और कैंसिल ना साइन थीटा, सो इट बिकम्स राइट हैंड साइड। आप देख सकते हो बेटा, समझ रहे हो ना, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा या टेन थीटा इनटू एंड 1 बाय सेक इज सेड टू बी cos थीटा, फर्दर टेन थीटा इज रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा, cos was cancelled so it is only sin थीटा। सो इस तरह से ना हमने इस क्वेश्चन को ऐसे इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin theta plus cos theta is equal to p and sec theta plus cosec theta is equal to q, then show that q into p square minus 1 is equal to 2p. It is very easy question. Beta, we have to prove that q of p square minus 1 is equal to 2p. So first we will take its left hand side. So now taking the left hand side is equal to q of p square minus 1. where q is equal to है, देखो q क्या ये है, देखिए लिखना sec थीटा प्लस cosec थीटा, दिस इज द q एंड p स्क्वायर। सो फर्स्ट आप राइट द p, आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, p है sin थीटा प्लस cos थीटा ना, आप होल स्क्वायर है अर्थात p स्क्वायर है ये, अब -1, तो क्या किया यहाँ पर हमने q p की वैल्यू रख दिया। अच्छा एक काम करो, sec को ना
कॉस में कोसेक को साइन में चेंज करो। वी नो द सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय cos थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट के लिए बनाओ और यहाँ जो डालो, दिस इज द sin थीटा प्लस cos का होल स्क्वायर ना, इट मे बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये माइनस पहले से है। अब आगे देखो, इसका थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में आएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, यानी ये होगा sin थीटा प्लस cos थीटा। अभी कैसे है बच्चे, आप समझ रहे होंगे। इनटू sin थीटा इनटू 1 sin थीटा, cos थीटा इनटू 1 cos थीटा, बीच में प्लस लगा दो और अपन डिनोमिनेटर होगा cos थीटा इनटू sin थीटा। सिंपल कैलकुलेशन है। अरे यहाँ देखो, ये तो 1 होता है ना, 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा और माइनस 1 पहले से। अब देखो -1 + 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा। फर्दर sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, इससे सिर्फ आएगा 2 टाइम्स sin थीटा प्लस cos थीटा। और आपको पता है ना sin थीटा प्लस cos थीटा क्या है, p है, अर्थात आ जाएगा 2p, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। हेंस प्रूफ। एक दो लाइन और इन्वेस्ट करते हैं। अब अगले आंसर क्या होगा, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा इनटू, बेटा 1 से 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा। ये भी इससे कैंसिल, तो अब क्या बचा, बस 2 बचेगा और आगे लगा दो 2 ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा एंड वी नो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा गिव्स p, so it becomes 2p which is equal to right hand side। यही सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था। ऐसे कर सकते हो ना, यही प्रूफ करना था। ओके, अब आते हैं कुछ अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन है if tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta is equal to n, then so that m square minus n square is equal to 4 into under root mn। बेटा इसको सिंपल, इसको प्रूफ करने के लिए ना आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, जहां m जो है tan थीटा प्लस sin थीटा है और जहां n जो है tan थीटा माइनस sin थीटा, और m n की वैल्यू रखने के बाद इसको थोड़ा सिंपलीफाई करिए। आप देखोगे जब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो ये छोटा सा आंसर आता है। फर्दर आप राइट हैंड साइड को भी सिंपलीफाई करिए, वही सोल्यूशन ला दीजिए, वही आंसर ला दीजिए। तो हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जहां m क्या है ये सोचो, m जो है, या फर्दर बेटा एक लाइन और लिख दो, वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b प्लस b। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, m माइनस n इंटू m प्लस n। अब देखो जहाँ m क्या है, पहले m जो है tan थीटा प्लस sin थीटा है, तो tan थीटा प्लस sin थीटा है एक ब्रैकेट में, फिर माइनस n क्या है tan थीटा माइनस sin थीटा, tan थीटा माइनस, थोड़ा इसको यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा लाइन पर स्प्रेड होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड इधर है, पहले m देखो, m की वैल्यू ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में, स्मॉल m की वैल्यू है tan थीटा और प्लस sin थीटा, फिर माइनस n की वैल्यू है tan थीटा और माइनस sin थीटा ब्रैकेट को। दिस इज द वैल्यू ऑफ m माइनस n इनटू m प्लस n, अर्थात tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा, बीच में होगा प्लस और n होगा tan थीटा माइनस sin थीटा। मैं यही लिख रहा हूँ tan थीटा और माइनस sin थीटा, ये sin थीटा है। अब जरा ब्रैकेट ओपन करो, बेटा जब ब्रैकेट ओपन करते हो तो यहाँ से आएगा tan थीटा प्लस sin थीटा माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कट जाएगा, sin थीटा प्लस sin थीटा बचेगा, तो जो इसकी वैल्यू होगी 2 sin थीटा आएगा। थोड़ा एक लाइन में समझो, इनटू यहाँ से सोचो tan थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा sin थीटा कैंसिल होगा, tan थीटा प्लस tan थीटा इट गिव्स 2 tan थीटा। और देखो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 sin थीटा tan थीटा, sin थीटा इंटू tan थीटा। अब क्या कर सकते हो, sin थीटा और sin थीटा रखो, tan को लिख सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा, तो होगा 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहो तो इतना ही छोड़ दो, क्योंकि आगे चल करके हम ना 4 रूट mn निकालेंगे, अर्थात ये जो रूट 4 तो सामने दिख रहा है, इट मीन दैट रूट mn की वैल्यू मस्ट इक्वल टू sin थीटा इनटू tan थीटा आना चाहिए। इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, देखते हैं क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आना चाहिए बेटा 4 sin थीटा इनटू tan थीटा, राइट हैंड साइड में आना चाहिए, ठीक है ना। इसको आगे सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब लिखो राइट हैंड साइड, इसको मैं एच कर दे रहा हूँ।
राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड ये है 4√mn, जहां m क्या है, m जो है अंडर tan थीटा प्लस sin थीटा है, अंडर tan थीटा प्लस sin थीटा इनटू n क्या है tan थीटा माइनस sin थीटा। थोड़ा और सिंपल करते हैं, 4√, अरे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट गिव्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सो वी हैव tan स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, अब देखो tan स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस, और ये पहले से sin स्क्वायर थीटा है। अब क्या करेंगे, आप ध्यान दो बेटा, न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा कॉमन है तो आप कॉमन लीजिए और रूट के बाहर करिए, तो डायरेक्ट क्या होगा, मैं ऊपर के 2 लाइन एज कर रहा हूँ, चलो मैं पूरा एज कर रहा है, तो देखो क्या होगा, राइट हैंड साइड 4 sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया और रूट के बाहर के तुरंत sin थीटा चेंज होगा, और अंडर रूट होगा 1/cos स्क्वायर थीटा, अभी -1 हो जाएगा। आप समझ सकते हो कैसे होगा, ठीक है ना। बट अब देखो अब क्या कर सकते हैं, ये समझ लो, 4 sin थीटा अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लोग ये आएगा। अब बताओ 4 sin थीटा अंडर 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हो 4 sin थीटा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा और 4 sin थीटा इंटू tan थीटा। Thus we can say that left hand side is equal to क्या, राइट हैंड साइड। बेटा इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड भी तो आया था 4 sin थीटा इंटू tan थीटा, और राइट हैंड साइड भी आ गया 4 sin थीटा इंटू tan थीटा। सो वी कैन से दैट LHS is equal to RHS, hence proved, यही सिद्ध करना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if cos थीटा प्लस sin थीटा is equal to अंडर रूट 2 cos थीटा, then so that cos थीटा माइनस sin थीटा is equal to रूट 2 sin थीटा। Actually this is very different questions. Here we see that this is the given part, बेटा आप given part लेके चलो, उसके बाद दोनों पार्ट को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना और मल्टीप्लाई करना, तुम देखोगे यही आएगा। इट इज वेरी इजी, बस ना 1-2 लाइन आपको याद होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले लिखो गिवन दैट, गिवन दैट कुछ क्वेश्चन ना प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने पहले बोला था ना ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं और ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इसलिए कि बहुत कठिन है, नो दिस इज नॉट वेरी टफ क्वेश्चन। बस ये है कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना आगे के 2 या 3 लाइन आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा क्या करना, आपको गिवन पार्ट लेके चलना है। तो सिंपल जब गिवन पार्ट है यानी गिवन पार्ट दिया है, सो इट इज cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू cos थीटा। अब क्या करोगे, अब लिख देना इसके नीचे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव, या दिस इंप्लाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मैं सीधे दिस इंप्लाई लगाऊंगा और इसका होल स्क्वायर ले लूंगा, बेटा इसका भी होल स्क्वायर होगा। अब देखो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, अब cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा ना, सो इट बिकम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। जैसे कि बेटा तुम लोगों को पता है ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा अब करोगे क्या, अब देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2 cos थीटा sin थीटा की वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं जरा ये बताओ, आ सकता है 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अभी आप इसको चाहो फर्स्ट का दर्जा दे दो। अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखो। प्रूफ करना है कि सो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू रूट 2 sin थीटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक ये है कि हम पहले ये चेक करेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, जरा करके देखते हैं। यहाँ तक तो बेटा आप नोट कर लेना। अब हम लिखेंगे सिंस
cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। क्यों क्या होता है, अब ऐसा क्यों कर, इसका जवाब मिलेगा आपको। ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। जैसा कि आपको पता है इसकी वैल्यू तो 1 हो गया, 1 माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा या साइन थीटा cos, बात सही है। अब ध्यान दो, अभी भी निकाला था ना 2 cos थीटा साइन थीटा क्या होती है, ये होता है ना, तुम देखो इसकी वैल्यू पुट करो, 1 माइनस यूजिंग फर्स्ट कर देना, इसके जब लिखोगे ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ लिख देना यूजिंग फर्स्ट, अर्थात इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया, यूज किया हमने। क्यों, क्योंकि हम जान चुके हैं पहले गिवन पार्ट से कि 2 cos थीटा sin थीटा की वैल्यू जो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। अब जब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, तो बेटा जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा। देखो बेटा 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया ना। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर आ रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा। सो दिस इंप्लाइज cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू होगा अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। ये बताओ बेटा यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें प्लस माइनस का जिक्र नहीं है। ये मान के कर रहा है कि ये cos थीटा माइनस साइन थीटा जो आएगा ना उसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, अर्थात वो था लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ पे ना प्लस माइनस नहीं लगाया तो अब भी मत लगाना, रूट 2 sin थीटा। तो क्या यही प्रूफ करना है क्या, हाँ यही प्रूफ करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है आपका प्रूफ हो गया ना, अंडर रूट 2 sin थीटा, यही सिद्ध करना था, यही आपका बेटा क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो ट्रिक क्या था मैंने पहले बता दिया, गिवन पार्ट से आप निकालोगे 2 sin थीटा cos थीटा को वैल्यू, कैसे आएगा, गिवन पार्ट का जो भी दिया है उसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का होल स्क्वायर करना होगा, देखना होता है क्या है, तो वहां से 2 cos थीटा sin थीटा वैल्यू रखेंगे, मैनिपुलेट करोगे आ जाएगा। थोड़ी सी आपको इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन लगाना आपके लिए मुश्किल होगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है, इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c देन प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस माइनस लगा दिया तो आप समझ गए होंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन प्रूफ किए थे ना सेम उसी तरह इसको भी करना है, पर थोड़ा चेंज करेंगे। इतना तो तय है कि गिवन पार्ट लिख चलेंगे और दोनों होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहले कैसे करते हैं, उससे याद करते हैं। गिवन दैट a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c, तो स्मॉल कर लिखना। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर और c का होल स्क्वायर, c स्क्वायर होगा। बेटा देखो ये ब्रेक करो ना, दिस इज द फॉर्म ऑफ x माइनस y का होल स्क्वायर ना, दिस गिव्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, सो a cos थीटा होल स्क्वायर गिव्स a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक स्टेप में कम कर रहा हूँ, माइनस यानी प्लस सॉरी y स्क्वायर ना, तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ तो b sin थीटा होल स्क्वायर मींस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये होगा माइनस 2 टाइम्स सिस्टमेटिक में लिखेंगे माइनस 2 ab cos थीटा sin थीटा या sin थीटा, दोनों का मतलब एक ही होगा, इक्वल टू c स्क्वायर। फिर इससे पहले क्वेश्चन में ना हम लोग क्या किए थे वो भी एक तरीका सही है कि हमने ना माइनस 2 ab sin थीटा cos थीटा वैल्यू निकाला था, चाहो तो निकाल ही दो यहाँ से। दिस इंप्लाइज दैट, बताओ 2 ab sin थीटा cos थीटा क्या होगा, सोचो यहाँ से, ये होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस c स्क्वायर। क्या किया मैंने, माइनस 2 ab sin थीटा cos थीटा को उधर ट्रांसफर किया और c स्क्वायर इधर ला दिया, ये आया आपके रिलेशन। इसको आप ना इक्वेशन फर्स्ट कर दो। अब जो प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस, उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का स्क्वायर करो। ध्यान देना हम लेफ्ट हैंड साइड कहीं लिखेंगे, सीधे लिखना 9। अब ये लिखो a sin थीटा और प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। सोचो क्या होगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, क्या होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा।
2ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दो क्या करोगे, 2ab sin थीटा कॉस थीटा जगह पे ना आप लिखोगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस c स्क्वायर, अर्थात आप यूजिंग फर्स्ट करो इक्वेशन 1 क्या सहायता लो। तो वो ऊपर की दो लाइन अरेंज कर दे रहा हूं। देखो बेटा अब क्या होगा, यहां से a sin थीटा स्मॉल a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिससे पहले लगाया था, इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नो मोर चेंजेस प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नो मोर चेंजेस प्लस, अब ध्यान दो 2ab sin थीटा cos है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट से आप देखो इसकी वैल्यू क्या है, मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस एक cos स्क्वायर ध्यान दीजिएगा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इस sin स्क्वायर थीटा है और माइनस c स्क्वायर, और यहाँ लिख देना साइड में यूजिंग फर्स्ट, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया। ठीक बेटा, अब देखो थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है। अब ये बराबर क्या होगा, जरा ब्रैकेट खोलो, ध्यान दो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अब प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर आप इन दोनों में अगर आप sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हो तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा समझो। वैसे देखो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे प्लस b स्क्वायर कॉमन लेते हो तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और माइनस c स्क्वायर रह जाएगा। अब चेक कर लो, अब देखो बेटा प्रूफ शायद हो गया, देखो ना अब क्या आया, अब इन दोनों में सॉरी बेटा हमने cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है ना, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों में जब कॉमन लोगे तो आएगा ये आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर। जरा एक बार चेक कर लो, देखो sin स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अब प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में sin स्क्वायर थीटा कॉमन है तो आएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्दर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में b स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो कॉमन हम इसमें और इसमें ले रहे हैं, और ध्यान रखिएगा रीअरेंजिंग करिएगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये जब कॉमन होगी cos स्क्वायर थीटा तो आएगा b स्क्वायर प्लस स्क्वायर। वैसे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अब प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में जब sin स्क्वायर थीटा कॉमन होगी तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और लास्ट में माइनस c स्क्वायर है। तो इस तरह से बेटा देखो अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है तो आएगा एक ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा और बाहर क्या बचेगा माइनस c स्क्वायर। जैसा कि पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इट गिव्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर, या अब लिख सकते हो ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा रीअरेंजिंग करके समझ लीजिएगा। और ये किसके लिए है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर है। अब ध्यान दो, अब होल स्क्वायर तो मिल गया, अब हमें लिखना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। दिस इंप्लाइज a sin थीटा प्लस b cos थीटा, दिस गिव्स प्लस माइनस। मैंने पहले बोला था ना कि क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो प्लस मत लगाना, लेकिन यहाँ तो है तो प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। हेंस आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा पॉज बटन यूज करके स्टेप को खुद समझने का प्रयास करें, खुद अपने तरीके से लिखने का प्रयास करें। और बेटा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इनटू sin 90 माइनस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा, अर्थात डिटरमाइन cot थीटा। राइट डाउन द सॉल्यूशन, दिस इज द गिवन पार्ट। ध्यान देना बेटा, दिस इज द गिवन पार्ट, द गिवन दैट, अब गिवन दैट टेक चलो, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू है रूट 2 ऑफ sin 90 minus theta. This implies that, as you know that sin 90 minus theta gives cos theta, so we may write sin theta
प्लस cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा। नाउ अब क्या करोगे बेटा, cos थीटा को डिनोमिनेटर में अर्थात दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड करो। इट गिव्स sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू रूट 2। cos थीटा cos से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब इसको जरा सेपरेट करो, अलग अलग करो। आप लिख सकते हो ना sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू रूट 2। जैसा कि पता है ना sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इट गिव्स tan थीटा, ये प्लस 1 होगा इक्वल टू रूट 2 होगा। यहां से आप tan थीटा क्या लिख सकते हो, देखो यहां से आप tan थीटा लिख सकते हो ना, इट गिव्स रूट 2 माइनस 1। दिस implies that we know that the reciprocal of tan theta is what, cot theta। तो एक्चुअली हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ cot theta, ओके। सो 1 अपॉन tan थीटा इसका रेसिप्रोकल करो, जिसका भी रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, एंड वी नो दैट 1 अपॉन tan थीटा गिव्स cot थीटा। इट गिव्स cot थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। यही आंसर है बेटा। अगर रेशनलाइज करा तो रेशनलाइज कर सकते हो, चाहो ये के छोड़ दो। अब जिनको रेशनलाइज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे फर्दर, यहीं पे आप इसकी रेशनलाइजिंग जो फैक्टर होती है क्या होती है बताओ, क्लास 9 पढ़ा था, रूट 2 प्लस 1 ना, मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इट गिव्स रूट 2 प्लस 1। बेटा क्यों, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 1 गिव्स 1। सो इट गिव्स ओनली cot थीटा इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन होगा। If x equal to a sin theta, y equal to b tan theta, then prove that a square upon x square minus b square upon y square is equal to 1. Write down the solution given. Actually, we have to prove that this means now a square upon x square minus b square upon y square is equal to 1. So take the left hand side. The left hand side है a square by x square और minus b square by y square. बेटा the value of x is a sin theta ना, so x square becomes a square sin square theta। अब डायरेक्ट लिखो a square upon a square sin square theta, ऐसे ही b square upon y square, and the value of y is b tan theta ना, so it becomes b square tan square theta। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या होगा, it gives 1 by sin square theta और minus 1 by tan square theta। As you know that 1 by sin theta cosec theta होता है, तो 1 by sin square theta ये होगा cosec square theta। 1 by 10 cot होता तो 1 by 10 स्क्वायर cot स्क्वायर हो जाएगा। आपने फार्मूला पढ़ा था बेटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया ना। ये हमारा क्या राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हो ना, ये बस 2-3 लाइन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। x इक्वल टू a sin थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा आगे चलकर तुम जानोगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इन पैरामीट्रिक फॉर्म में द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x बराबर a sin थीटा, y बराबर b cos थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इलिप्स का इक्वेशन होता है ना, वो हमेशा पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है x स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1। वैसे छोड़ा जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है भी, बस आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब ध्यान रखना व्हाट इज x, x जो a sin थीटा उसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अच्छा बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, फिर बता दूं, जब x का स्क्वायर करोगे ना तो आप a sin थीटा का होल स्क्वायर करोगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर और sin थीटा का होल स्क्वायर भी sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डायरेक्ट इसको लिखते हैं y का स्क्वायर इट इज b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। देखो क्या बचेगा, सिर्फ sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड साइड। बेटा आप देख रहे हो मात्र 2 या 3 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है, थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैं sec थीटा लगा देता हूँ और यहाँ मैं tan थीटा लगा दे रहा हूँ और ये माइनस लगा दे रहा हूँ। अब एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या है क्वेश्चन, if x equal to a sec theta, y equal to b tan theta, then prove that x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. It is said to be the equation of hyperbola।
कार्टेशियन फॉर्म में हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है ये होता है, पैरामीट्रिक में होता है x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। चलो बात इक्वेशन के लिए हमें प्रूफ करना है। मान एग्जाम में सवाल आ गया 2 मार्क्स, क्या करोगे? आप इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिख। चलो क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बेटा ध्यान दो, व्हाट इज x का स्क्वायर? ये होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर क्या होगा अर्थात b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा और अपन b स्क्वायर। अब तुम क्या देख रहे हो, a स्क्वायर से कैंसिल ना, बचेगा सिर्फ sec स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा सिर्फ tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1, आइडेंटिटी फार्मूला, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन और हम बना सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन। मान लो x इक्वल टू है a sin थीटा, यहाँ साइन कर दे रहे, और y इक्वल टू है a cos थीटा। ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ a है। तो क्वेश्चन में ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच रेडियस इज ए। तो यहाँ भी वही काम करना है, तो और सिंपल है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चलना है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा क्वेश्चन रीड कर लीजिए, एक एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, y equal to a cos theta, then prove that x square plus y square equal to a square। देखते हैं वैल्यू ऑफ x क्या है, ये है ना। चलो एक बार लिख करके दिखा दे रहा है। ये होल स्क्वायर है, x की वैल्यू, y क्या है, a cos थीटा है, जिसका भी होल स्क्वायर है। अब क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फर्दर से a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अर्थात a स्क्वायर इंटू 1 बराबर a स्क्वायर होगा। यही आपका क्या, राइट हैंड साइड है। ऐसे आप प्रूफ करोगे। इस तरह बेटा आप ना बड़े आसानी से इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू m एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू n, देन सो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू n स्क्वायर। एज यू नो दैट, here we will take left hand side part and put in the value of m and then solving, then we will get n square। देखते हैं how to prove। So write down the solution। left hand side which is m square plus n square into cos square बीटा। बेटा देखो m का स्क्वायर ना, जरा सोचो m का स्क्वायर मींस क्या, cos अल्फा अपॉन cos बीटा होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, which is cos अल्फा अपॉन sin बीटा का होल स्क्वायर। ये है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा, ये cos स्क्वायर बीटा यहाँ। अब जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस ये होगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा इनटू, और न्यूमरेटर में है, ध्यान दीजिएगा, ये है cos स्क्वायर बीटा। बेटा देखो क्या देख रहे हो तुम, यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा है न्यूमरेटर में, इसके पास भी cos स्क्वायर अल्फा है। तो क्यों ना हम लोग ना cos स्क्वायर अल्फा को पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं एरेज कर दे रहा हूँ, हमें n स्क्वायर लाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू LHS बराबर लिख दीजिएगा। पहले cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं, अंदर क्या आएगा देखो, ये आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस आएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर बीटा और इनटू आएगा cos स्क्वायर बीटा। और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखो बेटा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा को पास पास रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में, इसका एलसीएम होगा cos स्क्वायर बीटा इनटू sin स्क्वायर बीटा। तो क्या होगा, ये आएगा यहाँ से sin स्क्वायर बीटा और ये आएगा आपका cos स्क्वायर बीटा। अब आप समझ सकते हो कैसे आएगा। ठीक है, अरे sin स्क्वायर बीटा इंटू 1 sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इंटू 1 cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर बीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एज यू नो दैट बेटा इसकी तो वैल्यू 1 होती है, और यहाँ से देखो cos स्क्वायर बीटा, ये cos स्क्वायर बीटा कैंसिल होगा और ये 1 होगा। क्या बचा, देखो cos स्क्वायर अल्फा आएगा इंटू 1 और अपॉन sin स्क्वायर बीटा, अर्थात cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा
जिसको हम कह सकते हैं cos अल्फा अपन साइन बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, शायद ये cos अल्फा अपन साइन बीटा ही तो n है, ये n स्क्वायर हो जाएगा और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड। चेक कर लो आप, क्या cos अल्फा अपन साइन बीटा n है गिवन पार्ट में, आप देखोगे यस cos अल्फा अपन साइन बीटा इक्वल टू n। हेंस इस तरह से बच्चों ना हमने कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए, आप देखोगे ध्यान से अपने बुक को, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को, तीसरे क्वेश्चन आपको शायद ही मिले, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में मिल जाएगा। तो एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया। अगर आपको अभी भी लगता है कुछ क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि मैं उसका वीडियो बना करके आपको सबमिट सेंड कर दूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा मेहनत करिए, अच्छे स्कोर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। थैंक यू वेरी मच।